Good morning, everybody. Tomorrow we have study operation of the two set intersection and union and is property right. Intersection માં શું આવે and આવે common element of the a and b બરાબર set of the all common element of a and b, then this set is called intersection of the two set. Union either a or b, a માં હોય તો બી લખો, b માં હોય તો પણ લખો બરાબર. a union b contain element of either a or element of b બરાબર, but intersection contain element of a as well as element of b, right. આપણે વેન ડાયાગ્રામ જોઈએ. આપણે વેન ડાયાગ્રામ વેન ડાયાગ્રામ નો ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે બરાબર. પહેલા તો whenever we learn about set, so we have universal set. તો ફર્સ્ટ યુનિવર્સલ સેટ માનો કે મારે સેટ એ નો વેન ડાયાગ્રામ draw the set a of વેન ડાયાગ્રામ of set a. સેટ એ માં માની લો કે આ મુજબ એલિમેન્ટ છે 1 2 3, આને મારે વેન ડાયાગ્રામ માં શો કરવો છે. તો પહેલા તો હું યુનિવર્સલ સેટ ડ્રો કરીશ આ રીતે. This is universal set. Universal set denoted by u. હવે હું a ને ડ્રો કરીશ. હવે મોસ્ટલી રાઉન્ડ થી ડ્રો કરે છે. It is not necessary is total circle. It may be ellipse, triangle, rectangle, કોઈ પરથી તમે શો કરી શકો. હવે હું આ રીતે પણ શો કરી શકું, એવું કઈ નથી. આ સેટ છે બરાબર. યુનિયન યુ માં લખો 1 2 5. હવે તમારે વેન ડાયાગ્રામ માં શો કરવા છે. જો આ rectangle is a universal set. Rectangle is universal set and triangle is a set A. So which element in set A? Which element in set A? So 1 2 3. So 1 2 3 are noted in triangle. बरोबर. तो ये लखा है 1 2 and 3, right? And universal set as a 1 2 3 4 5. तो 4 and 5 क्या લખું બતાવું? 4 and 5 क्या લખું? તો outside the a क्या લખું? outside the a. outside the triangle. અહીંયા માનો કે 4, અહીંયા માનો કે 5. હવે મેં તો ટ્રાયંગલ ડ્રો કર્યો. ટ્રાયંગલ ની જગ્યાએ સર્કલ પણ ડ્રો કરી શકું નથી. આવું પણ કંઈ પણ ટૂંકમાં બાઉન્ડેડ ફિગર હોવી જોઈએ. શું હોય છે? બાઉન્ડેડ ફિગર. ઓપન ફિગર ન ચાલે. આમ પણ કરી શકું 1 2 and 3. ક્લિયર? યસ કે નો? બરોબર. સેકન્ડ show Venn diagram of A union B. બરોબર. show Venn diagram of A union B and A intersection B. આનો વેન ડાયાગ્રામ મારે શો કરવો છે. કેવી રીતે કરું? જો પહેલા તો આ રેક્ટેંગલ ડ્રો કયો છે? આ કયો ડાયાગ્રામ? but two circle, two triangle, two another rectangle inside the rectangle you can draw. तो two circle draw करो. एक सर्कल A, एक सर्कल B. આ સેટ A છે, આ સેટ B છે. મારે A યુનિયન B મારે શો કરવો છે. તો યુનિયન માં કોણ આવે? આઈધર શો A or શો B. A and B બંનેને શો કરવાનો. એટલે આ A યુનિયન B થશે. જો આ A ને બી શો કરી દીધો, B ને પણ શો કરી દો. જ્યાં જ્યાં શેડેડ રિજન આવશે બરોબર, when shaded region show each all contain E A union B. બરોબર. A intersection B લેવું હોય તો
तो कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज सेट ए, दिस सेट बी। तो इंटरसेक्शन में which region is common of both A and B? तो only this region. इसे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, बड़ा कॉमन फ्रीक्वेंटली આવશે। हम मान के चलो बहु बार कॉमन આવશે, एंड लखे तो कॉमन यू और આવે તો યુનિયન, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। હવે જો આના પરથી મારે કરો તો માનો કે આ સેટ A છે ના સેટ B છે, तो आना परती मारे इंटरसेक्शन जोतो होय तो डबल वार मेनी टाइम शेडेड रीजन क्या है, 2 टाइम शेडेड रीजन। तो आटला में 2 टाइम शेडेड रीजन है ना, दिस रीजन इज सो 2 टाइम शेडेड, तो इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, इज कॉल्ड बराबर ए इंटरसेक्शन बी। आ वेन डायग्राम बराबर। પછી આવશે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેટ, તો આવશે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેટ। set of A, complementary set of A, it is denoted by a dash or symbol a dash। આસો લખ્યું છે complement of set A, complement of set A, આમ પણ લખાય A બાર, આ પણ શું લખે complement of set A અને AC, આ બંને એક જ સિમ્બોલ છે, a dash લખ્યો હોય, ए बार लख्यो होय या ए सी लख्यो होय, असो डिनोट करे से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कोने के कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट ए बराबर। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मान लो पहला तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 u है बराबर, a इज इक्वल टू है तो complement of set A dash is equal to set of the all element contained in U but not contained in A। कि U का हर एक एलिमेंट लिखो बट जो एलिमेंट A में है वो नहीं लिखेगा। set of all element of contained in U but not contained in A। तो कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा बोलिए, यू का हर एक एलिमेंट लिखने का है बट ए का कोई एलिमेंट लिखने का, यू के अंदर जो एलिमेंट हो सब लिखो बट कौन सा वाला नहीं लिखो, जो एलिमेंट ए में है वो नहीं लिखो। तो कौन कौन आएगा, तो क्या पहले तो 2 आए 1 आएगा बट 2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में है, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। मान लो कि B इज इक्वल टू 1 4 5 6 है, तो क्या आएगा, चलो B डैश क्या आएगा बोलिए फटाफट, B डैश व्हाट एलिमेंट ऑफ B डैश, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U बट नॉट इन B, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U बट नॉट इन B। तो B के अंदर जो एलिमेंट है वो U में से हटवा दो तो 1 निकल जाएगा, यानी कि 2 3 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 2 3 4 1 और 6 दो एलिमेंट आएगा। ख्याल आ रहा है, हेलो बोलो, यस सर। चलो सो डेफिनेशन क्या लिखो, एडएस की डेफिनेशन, एडएस की डेफिनेशन x belongs to U but x does not belongs to A। ख्याल आया क्या नहीं, x belongs to U but x does not belongs to A। चलो कोई मुझे बोलेगा 5 का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ 5 क्या होगा, बोलो दिमाग लगा के बोलिए,
दिमाग लगाइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, यू का हर एक एलिमेंट लिखने का, बट फाइव का एलिमेंट नहीं लेता, फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो कौन आएगा, यू खुद आएगा, राइट। यू का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, बोलिए, यू का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, सोचिए। यू में से यू का हर एक एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा, फाइव। अरे वाह, गॉड, वेल डन, कुछ समझ रहे हो। मान लो कि ए डैश और डैश, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट खुद नहीं आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखने जाएंगे तो क्या होगा, यू का हर एक एलिमेंट लिखने का, बट ए डैश का नहीं लिखने का, 2 3 5 आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, खुद गब्बर आएगा, खुद वही का वही वापस आएगा, है ना। ये तीन इसकी प्रॉपर्टी। मान लो कोई आपको बोलेगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x ए में नहीं है तो कहां पे होगा, बोलो, x ए में नहीं है तो कहां पे होगा, चलो श्योरिटी बोलो, x ए में नहीं है, ए में नहीं, जो यहाँ पे कौन नहीं है, जो यूनिवर्सल सेट में तो यूनियन, यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही होगा, तो वो आंसर नहीं देने का, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में तो है ही, ए में नहीं है तो कहाँ पे होगा, तो मान लो कि ये 1 ए में नहीं है तो एड्रेस में है क्या नहीं, हेलो, 2 3 5 नहीं है तो एड्रेस में है क्या नहीं, कि जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वो 101% एड्रेस में आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, that implies x belongs to a dash, जो एलिमेंट ए में नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री में है, ऑब्वियसली बात है यार, है ना। लिख लो पहला वर्ड, और उसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस इक्वल टू यू माइनस ए, ऐसा भी लिखते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू यू, यू में से एक का एलिमेंट दूर करवा दो, एड्रेस के वेन डायग्राम ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो, वेन डायग्राम ऑफ द एड्रेस, चलो, वेन डायग्राम ऑफ द एड्रेस, कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला तो मैं ये तो सेट में बताओ, यूनिवर्सल सेट में ए यू, ये सेट है, मुझे एड्रेस शो करना है तो क्या, कहाँ पे शो करूँ, कहाँ पे शो, आउट ऑफ द ए के अंदर नहीं, आउट ऑफ द ए, तो ये वाला आएगा, ये पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा, ये किसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, किसका वेन डायग्राम है, एड्रेस का है, और ड मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, आपको बराबर याद रखना, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट एन, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन सेट, ओके, ए यूनियन बी ऑल डैश इज इक्वल टू,
ए यूनियन बी ऑल डैश क्या होगा, तो ए डैश सेपरेट होगा, ए डैश ब्रैकेट को सेपरेट करेगा, सबके पास जाएगा। ए के पास जाए तो ए डैश होगा, यूनियन के पास जाएगा यूनियन का डैश इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी के पास जाए तो बी डैश आएगा। प्रूव भी कर सकता हूँ मैं, अभी प्रूव भी कर लेते हैं पर। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा बोलिए अब, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो के ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी। हाँ कहाँ पे काम में आएगा, बहुत सारी जगह पे काम आएगा। मान लो नो एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी, नो एलिमेंट ऑफ द ए एंड बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, वो मैं वर्ड्स लिखा, वर्ड्स के हिसाब से आपको मालूम करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, का यूनियन फाइंड करना है, का दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वो जैसे जैसे एग्जांपल एक साथ बता दूंगा आप हैंग हो जाओगे, है वो भी तो ऐसे ही याद रखो। हाँ चलो प्रूव भी करते हैं हम। मान लो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 1 3 4 6। प्रूव है a यूनियन b ऑल डैश इक्वल टू n, जब कॉम्प्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट सबको लगेगा, ए को लगेगा तो ए डैश यूनियन का इंटरसेक्शन बी का बी डैश, ए का ए डैश इंटरसेक्शन का यूनियन और बी का बी डैश। चलो पहला वाला प्रूव करते हैं, पहला वाला हम प्रूव करते हैं। तो पहला वाला प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। अब पहला चलो ए यूनियन बी फाइंड करके बताओ मुझे क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, व्हाट कौन सा सेट ए यूनियन बी में होगा, फटाफट आंसर दीजिए भाई। ए यूनियन बी में कौन, यूनियन में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यूनियन में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। बोलो क्या लिखो, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी ऑल डैश, ए यूनियन बी ऑल डैश। तो कौन सा वाला आएगा, यू का हर एक एलिमेंट आएगा, बट जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है वो नहीं आएगा। तो यू, ये तो यू है, यू का हर एक एलिमेंट आएगा, बट ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो नहीं आएगा। तो यू में से उसका एलिमेंट रिमूव कर दो तो खाली क्या बचता है, ओनली 7, ये नंबर 1। अब क्या फाइंड करो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या आएगा, ए डैश बोलिए, ए डैश ऑल एलिमेंट एक्सक्लूड, ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सक्लूड ए, ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सक्लूड ए, ए के सिवा का हर एक यू का एलिमेंट क्या आएगा, तो 2 3 4 5 को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 6 7। बी डैश, बी डैश में क्या आएगा, एक्सक्लूड बी फ्रॉम यू, एक्सक्लूड बी फ्रॉम यू, बी में से यू में से उसको हटा दो, 1 3 4 6 को हटा दो, 1 3 4 6 रिमूव हो गया, तो क्या बचा 2 2 4 नहीं 5 एंड 7। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन कौन है, तो ओनली 7 ही है, तो दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ,
ओके ए यूनियन बी ऑल डैश इक्वल टू थियोरिटिकल भी प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ख्याल आए तो मैं थियोरिटिकल भी अभी थोड़ी देर के बाद कराऊंगा। है ना। अब दूसरा वाला कौन है तो पहले क्या फाइंड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है कहाँ पे मेरी नज़र होगी ए एंड बी पे। कहाँ पे मेरी नज़र होगी ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन है वही लिखूंगा। दोनों में कॉमन कौन है 3 एंड 4। तो क्या आएगा 3,4। अब उसका कॉम्प्लीमेंट सेट लेता हूँ। उसका कॉम्प्लीमेंट सेट तो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा यू का हर एक एलिमेंट आएगा बट ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो u में से 3 और 4 को हटा दो क्या बचा 1 2 5 6 7। क्लियर। अब मैं क्या करूँ ए डैश यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कौन है तो 1 6 7 यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कौन है तो के 2 5 7। ये दोनों का यूनियन है। यूनियन को सबको साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 5 6 7। ये नंबर 1 ये नंबर 2 दोनों देख लो सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का ऑल डैश इज इक्वल टू हेंस प्रूफ। उसको याद रखोगे बोल। उसका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं बोल। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। ये ए कौन सा वाला चाहिए ए यूनियन बी और का डैश। तो पहला तो ए यूनियन बी में कौन आएगा तो ए यूनियन बी में ए वाला पार्ट आएगा। ए पार्ट क्या आएगा ए यूनियन बी में ए वाला पार्ट क्या आएगा ए। उसको छोड़ के बाकी का सब पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा तो ए और बी को छोड़ दो तो ये सब ग्रीन रीजन इज शॉर्ट एट कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी। बोलो ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी क्यों बचा ऐसा इस कागज के इतना कुछ पार्ट काट लो तो ये वाला पार्ट बचेगा। ऐसा पार्ट बचेगा देखो ऐसा पार्ट बचेगा। तो ये वाला पार्ट है। ये काटा हुआ पार्ट कौन सा है ए यूनियन बी। उसके बाद बचा हुआ पार्ट कौन सा ग्रीन लाइन शो और ग्रीन रीजन शो और ए डैश ए यूनियन बी शो ग्रीन शेडर एरिया और ब्लैक लाइन शो ए यूनियन बी। लिख लो चलो नेक्स्ट डिफरेंस सेट। कौन सा वाला सेट डिफरेंस सेट। पहला तो मैं आपको प्रूव करा देता हूँ थियोरिकल। वो थियोरिकल आपको कहीं भी जगह पे पूछेगा नहीं। मैं आपके नॉलेज के लिए प्रूव करा रहा हूँ और प्रूव डेट ए यूनियन बी ऑल डैश इज इक्वल टू ए डैश
शब्दों की वर्ड्स की फीलिंग आनी चाहिए। यूनियन में और लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन में एंड लिखा जाएगा। फीलिंग वर्ड्स की आनी चाहिए। अगर वर्ड्स की फीलिंग नहीं आती तो मान लो आप नहीं कर पाओगे। और मैं कोई एक एलिमेंट इसमें लेता हूँ, वही एलिमेंट उसमें दिखाऊंगा, तभी तो इक्वल होगा ना भाई। ये दोनों इक्वल के जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें आना चाहिए ना। बराबर। मान लो कि मैं एक एलिमेंट लेता हूँ x बिलोंग्स टू A यूनियन B ऑल डैश, राइट। अब वही एलिमेंट मुझे कहाँ पे बताने का, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। लास्ट में ऐसा आना चाहिए क्या, x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन है तो N x बिलोंग्स टू B डैश, ऐसा कुछ आना चाहिए। ख्याल आया क्या नहीं। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से पहुंचूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, आपको याद है तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। मान लो कि कोई x बिलोंग्स टू A डैश में है तो कहाँ पे नहीं होगा, जो एलिमेंट A डैश में है वो कहाँ पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली A में नहीं होगा। That implies x does not belongs to A। तो A एलिमेंट x कहाँ पे है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, तो कहाँ पे नहीं होगा, A यूनियन B में नहीं होगा। तो इसके लिख सकता हूँ that implies x does not belongs to A यूनियन B, राइट। यस क्या नो, हेलो। कॉम्प्लीमेंट में है तो ओरिजिनल सेट में नहीं है। x कहाँ पे है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, तो A यूनियन B में नहीं होगा, ऑब्वियस बात। अब x यूनियन में कब नहीं होता, तो जब A में भी नहीं होता एंड B में भी, दोनों में किसी में भी नहीं होता। अगर A में होता या B में होता तो ऑब्वियसली U में आता। तो हम क्या रखेंगे, that implies x does not belongs to A। यहाँ पे एंड लिखूंगे, यहाँ पे यूनियन है, यूनियन के बारे में बिलोंग्स टू है तो और डस नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड, सोच के चलो। बराबर। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, उसका मीनिंग है x बिलोंग्स टू A और x डस नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, उसका मतलब है x A में भी नहीं है B में भी नहीं है। फीलिंग आनी चाहिए। यूनियन में कब नहीं आएगा, दोनों में नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का, that implies x not belongs to A and, तो x not belongs to A and x not belongs to B। चलो, x एलिमेंट A में नहीं है तो कहाँ पे होगा, जो एलिमेंट A में नहीं होता वो एड्रेस में होता है। तो x A में नहीं है तो कहाँ पे होगा, तो सर सीधी सी बात है, x कहाँ पे होगा, एड्रेस, एंड का एंड B में नहीं है तो कहाँ पे होगा, B डैश में होगा। तो x बिलोंग्स टू B डैश। तो x कहाँ पे है, एड्रेस में भी है एंड B डैश में है, दोनों में है। एड्रेस में भी है, B डैश में भी है, तो इसका इंटरसेक्शन में भी है। तो therefore that implies x belongs to A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दोनों तरफ implies लिख सकते, दोनों और सही है। therefore A यूनियन B all डैश इक्वल टू, ये थियोरेटिकल प्रूफ है। ये क्या है, थियोरेटिकल प्रूफ। अब दूसरा वाला कि प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B ऑल डैश इक्वल टू, वही का वही फंडा। ये प्रूफ फॉर एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में नहीं आएगा, बट उसका नॉलेज होना चाहिए। जब तुम बुक पढ़ो तो ख्याल होना चाहिए क्या लिखा है। चलो क्या करो,
पहले एक एलिमेंट इसमें ले लो, कहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या लो, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट। चलो एक्स कहाँ पे है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट में है तो उसका ओरिजिनल सेट में नहीं होगा। तो क्या देखो यहाँ पे डबल इंप्लाइज, दोनों और सही है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कब नहीं आता, अगर दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में आता है, दोनों में से कोई एक में नहीं होगा तब इंटरसेक्शन है। तो x कहाँ पे नहीं होगा, या तो फिर a में नहीं होगा, या तो फिर b में नहीं होगा, या तो दोनों में नहीं होगा यार। तो यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा मैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और हाँ तो x a में नहीं है तो कहाँ पे होगा, a डैश में होगा, तो x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। a डैश में या b डैश में किसी एक में तो है ही है, तो a डैश यूनियन थियोरेटिकल प्रूफ है बेटा, ये क्या है, थियोरेटिकल प्रूफ है। बोलो प्रैक्टिस कीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अपने को आना चाहिए। एग्जाम में पूछे ना पूछे उसकी कोई मतलब नहीं है, बट हमको आना चाहिए, वो जरूरी है। हमको कम से कम पता तो होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ प्रूफ आता है। तो कोई लोग तो सिखाते ही नहीं, डायरेक्ट बोल देते वो नहीं आएगा। हाँ, अब डिफरेंट सेट की बात करते हैं। डिफरेंट सेट, डिफरेंट सेट different of A from B, difference of A different from A to B, उसका मतलब क्या है, A में से B को घटाओ। कहाँ से डिफरेंस लेना है, A में से, किसका, B का, तो डिनोटेड बाय A माइनस B, डिनोटेड बाय, इट इज कॉल्ड डिफरेंट फ्रॉम A टू B, और अदर डिफरेंट सेट ऑफ B फ्रॉम A, ऐसे ही बोलते हैं डिफरेंट सेट ऑफ B फ्रॉम A, और ऐसा वर्ड्स भी नहीं, डायरेक्ट ही आएगा, डिफरेंट सेट ऑफ A फ्रॉम B फ्रॉम A डिनोटेड बाय, हमको तो वही लिखना है, क्या आएगा यार, हमको वर्ड्स जरूरी है, इट इज नेसेसरी, बट ये सेट के लिए जरूरी है, तो डायरेक्ट सिंबल ही देगा। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी, कॉम्प्लीमेंट की फील आई ना, कॉम्प्लीमेंट्री फील, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, यूनियन और सेट का डिफरेंट सेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, कैसा एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सबट्रैक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए, रिमूव, सबट्रैक्ट तो ना क्या, रिमूव, इसका मतलब क्या, रिमूव all elements of B from A, मतलब A में से B का हर एक एलिमेंट को रिमूव कर दो। कैसे देखते हैं हम, मान लो कि एक सेट है A,
दूसरा सेट है बी, राइट। चलो ए माइनस बी लिखो, क्या आएगा? आपकी सोच काम करनी चाहिए। ए माइनस बी, which element containing a minus b, set of the all element of a but not in b। जो एक क्या लिखा है, रिमूव ऑल एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में से रिमूव कर। बी में कौन है, 2 है, तो 2 को रिमूव कर दो। 4 है तो 4 को रिमूव कर दो। 5 है, 5 को रिमूव कर दो। बराबर, सिर्फ सेट ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट लिखना है, बी में है उसको हटा दे, दूर करने का, यानी कि क्या बच गया, तो 1,3। 6 नहीं लिखने का है? चलो बी माइनस ए कौन लिखाएगा, बी माइनस ए में कौन आएगा, तो बी में से ए का एलिमेंट यानी कि कॉमन एलिमेंट निकाल दो, कॉमन एलिमेंट निकाल दो, तो कौन आएगा, 2 4 5 निकल जाए, क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो सर मुझे एक और बात दिमाग में आती है, क्या आती है, तो मैं a माइनस बी जब मैं करता था, ऐसा मैं करता था, तब मैं a में से वो एलिमेंट रिमूव करता था जो b में था, उसका मतलब दोनों में था। सही बात है ना, 1 2 4 5 दोनों में था, वो हटा दिया, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और कुछ तो मान लो, और एच u इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू राइट। अब देखो, चलो पहले इतनी बात निकालो, a माइनस बी निकालो, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालो, a इंटरसेक्शन बी डैश, तीनों निकालो। कौन से चीज निकालने की बात कर रहा हूं मैं, पहला तो a माइनस बी निकालो, उसके बाद a माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, एंड फाइंड a इंटरसेक्शन बी डैश। चलो पहले की बात करता हूँ, तो कि a माइनस बी क्या आएगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट लिखूंगा, बट जो बी में होगा उसको रिमूव कर दूंगा, तो क्या है, 1 2 3 4 माइनस 2 3 5 6, दोनों में कौन है, 2 3 है, उसको रिमूव कर दो। सेट ए का ही लिखने का है, ध्यान रखो बराबर। तो 6 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो क्या 1 and 4, कौन सा वाला आएगा, 1 and 4। गलती से 5 6 नहीं लिखने का, सेट एक का ही एलिमेंट लिखने का है, सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा तब आएगा ऐसा। हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन है, तो जो सब्ट्रैक्ट किया वही तो कॉमन है ना भाई, तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये कौन है, 1 2 3 4 है, माइनस 2 3, उसको निकाल दो, क्या बचा, इसीलिए तो मैंने लिखवाया a माइनस बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन बी। और तीसरा वाला, पहले बी डैश निकालो, बी डैश क्या आएगा, बी डैश क्या आएगा, तो u में से b का हर एक एलिमेंट को हटा दो, तो 2 3 5 6 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 4
7 8 क्या बचेगा u माइनस बी करना पड़ेगा। तो u माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, तो क्या 1 आएगा और 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। है ना? और वो डी डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए कौन है, ये कौन है, 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन 1 4 7 8। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों का सेम पॉइंट आता है, दोनों में सेम एलिमेंट कौन है, तो 1 एंड 4 है ना। तीनों तीन क्या इक्वल आया, इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन बी डैश। ये तीनों को याद रख के चलिए, तीनों को याद रख के चलिए बोलो। अब देखो ए भी याद रखो, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, है ना, डिफरेंस सेट में कब नहीं होगा, पहले ध्यान से सोचिए। देखो डिफरेंस सेट में 1 नहीं आया, है ना, सॉरी ए माइनस बी में, ए माइनस बी देखो, ए माइनस बी क्या 1 4, है ना, ए में 2 था और डिफरेंस सेट में नहीं है, क्यों, तो क्या दोनों में था, है ना। यूनियन में 5 है, इसमें नहीं आया, है ना। तो a माइनस बी में कब नहीं आएगा, या तो x a में नहीं होगा या तो फिर दोनों में होगा। देखो यहाँ पे a में 2 था क्या, नहीं, तो a माइनस बी में 2 क्यों नहीं आया, दोनों में था। ये पे 1 है क्योंकि सिर्फ a में ही था, ऐसे तो 5 भी है, 5 क्यों नहीं आया, तो a में नहीं था। तो x डज नॉट a माइनस बी कब होगा, तो कि x नॉट बिलोंग्स टू a होगा या तो फिर दोनों में होगा, दोनों में यानी x बिलोंग्स टू, डिफरेंस सेट में कोई एलिमेंट कब नहीं आता, जब खुद में ना हो या फिर दोनों में हो, है ना। a माइनस बी में एक कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, तो कि जो a में नहीं होगा तब नहीं होगा, या फिर दोनों में होगा तो भी नहीं होगा, कि दोनों में होगा तो निकल जाता है ना बेटा, है ना। चलो लिख लो, और उसका रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ओके।